قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تو کتاب الحج یہ کتاب کی ترتیب میں 6واں باب ہے، اور اسلام کے ارکان خمسہ میں یہ 5واں رکن ہے، حج کا رکن۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارکان اسلام میں جو 4 ارکان عملیہ ہم پر فرض کیے ہیں، اس میں نماز تو یومیہ عبادت ہے، دن میں 5 مرتبہ ہے، اور زکوٰۃ اور روزہ یہ سالانہ عبادت ہے، سوائے کھیتی اور باغات کے پھل کے، کہ جب کھیتی تیار ہوگی، فصل تیار ہوگی، اور باغ میں کھجور اور انگور کے باغ میں جب ثمرہ اور منقع زبیب بنے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن عام طریقے سے زکوٰۃ بھی سالانہ ہی عبادت ہے، سوائے حبوب اور ثمار کی زکوٰۃ کے، کہ جب فصل آئے گی، سال میں اگر ایک آتی ہے تو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ آتی ہے فصل تو 2 مرتبہ ہوگی۔ اور حج بلوغت کے بعد سے لے کر زندگی کے آخری حصے تک، یعنی پوری عمر میں، بعد البلوغ، کیونکہ آدمی مکلف ہوتا ہے بلوغت کے بعد، تو بلوغت سے لے کر کے پوری عمر میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ مستطیع کے لیے حج فرض ہے، جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ حج کے شروط میں بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، کیونکہ کسی بھی غیر مسلم کی جانب سے اسلامی عبادت کی بجا آوری صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آئے۔ آخرت کے حساب سے تو وہ اسلام کے فروعات کے لیے مخاطب ہے، یعنی اس کو اس پر سزا دی جائے گی، جیسے شرک باللہ کی سزا ہوگی ویسے ہی ترک صلاۃ پر سزا ہوگی، ترک زکوٰۃ پر سزا ہوگی۔ لیکن دنیا میں اس سے اسلامی فرائض اور واجبات کا مطالبہ کفار سے تبھی کیا جائے گا جبکہ وہ مسلمان ہو۔ تو کفار مخاطبون بفروع الاسلام، اسلام کے فروعات اور احکام کے مخاطب ہے آخرت کے جزا اور سزا کے اعتبار سے۔ دنیا میں ادائیگی کے اعتبار سے ضروری ہے کہ وہ مومن، جب تک آدمی مومن نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا کوئی عمل صحیح نہیں ہے۔ اس لیے تمام عبادتوں کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ آدمی مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، کیونکہ قبل البلوغ کوئی عبادت فرض نہیں۔ عبادت پر کاربند کرنے کے لیے، عبادت کی عادت لگانے کے لیے حکم ہے 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دے، 10 سال کا ہو جائے تو ترک صلاۃ پر ہلکی اس کی پٹائی کرو، 10-11 سال کا ہو جائے روزہ رکھنے پر متحمل ہو تو روزہ رکھواؤ۔ البتہ زکوٰۃ ایک چیز ہے کہ اس کے لیے بلوغت کی اور عقل کی قید نہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو مال پر فرض ہوتی ہے۔ اگر بچہ ہے اور کروڑپتی ہے، پاگل شخص ہے، کروڑپتی ہے، تو جو اس کے بال کو دیکھ ریکھ کر رہا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، وہ اس کی زکوٰۃ نکالے۔ لیکن خود کرنے کا اگر معاملہ ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے یا حج کرنا ہے، تو اس کے لیے عاقل آدمی چاہیے اور بالغ آدمی چاہیے۔ اگر کوئی بچہ قبل البلوغ حج اور عمرہ کر لیتا ہے تو وہ اس کا حج فرض اور عمرہ واجبہ نہیں ہوگا، نفلی حج اور نفلی عمرہ ہوگا۔ تو اسی لیے اسلام، بلوغت اور عقل، اور چوتھی چیز ہے حریت، آزاد، کہ آدمی آزاد ہو، کیونکہ غلاموں پر حج فرض نہیں۔ اور 5ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ آدمی مستطیع ہو، مستطیع ہو۔ اب استطاعت بدنی بھی ہو سکتی ہے اور مالی بھی ہو سکتی ہے، اور بدنی مالی دونوں ہو سکتی ہے۔ دور دراز سے جانے والے لوگوں کے لیے بدنی طاقت بھی چاہیے اور مالی قوت بھی چاہیے۔ جو قریب کے لوگ ہیں اگر ان کے بدن میں طاقت ہے، مال نہیں بھی ہے،
तो वो जाकर के हज करे, क्योंकि वो पैदल चल सकते हैं और वहीं मजदूरी करेंगे या कुछ अपने खुद दोनों का इंतजाम कर लेंगे। और अगर आदमी दूर दराज वाला आदमी पैसे वाला तो है लेकिन जिस्मानी कुव्वत नहीं है, बहुत बूढ़ा है, कमजोर है, सवारी पर बैठ नहीं सकता, दाइमुल मरीज है, कभी सेहतयाब नहीं हो सकता, तो ऐसा आदमी उस पर वाजिब है कि वो किसी शख्स को तैयार करे जो उसकी तरफ से हज बदल करे, बशर्ते कि हज बदल करने वाला अपनी तरफ से पहले अपना हज कर चुका हो। और औरतों के लिए हज की शर्तों में से, इन तमाम शर्तों के साथ, जिस्मानी और माली इस्तिताअत के साथ, इस्तिताअत में एक शर्त और भी है कि उसके साथ शौहर जाए या कोई महरम जाए। महरम का मतलब है कि ऐसा रिश्तेदार बालिग जाए जो उस औरत के लिए हमेशा के लिए हराम है। ये शर्तें हैं हज की फर्जियत। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हज और उम्रा, सही कौल के मुताबिक उम्रा भी फर्ज है और हज तो फर्ज है ही, एक मरतबा मुस्तफी शख्स के लिए उन शर्तों के साथ जिनका जिक्र आपके सामने किया। ये हज हज की फर्जियत सही कौल के मुताबिक सन 9 हिजरी में हुई। कुछ लोग कहते हैं सन 5 हिजरी में हुई, क्योंकि जमाम इब्न सालबा आए, उनको जब आपने फराइज़ इस्लाम बताया तो उसमें हज का भी जिक्र है। तो अब ये कब आए, कुछ लोग कहते हैं 5 में आए, कुछ कहते हैं 6 में आए, कुछ कहते हैं 7 हिजरी में आए, लेकिन सही कौल ये है कि वो सन 9 हिजरी में आए, फतेह मक्का के बाद। सन 9 हिजरी को आमुल वफूद कहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से लोग वक्त की शक्ल में आया करते थे, मुसलमान होते थे, शराइ इस्लाम, अहकाम इस्लाम समझते थे। उसी में से बनु बकर बिन साद ने अपना नुमाइंदा ज़माम बिन सालबा को, जो इंतहाई अक्लमंद आदमी था, वो आया और उसने इस्लाम के ताल्लुक से सवाल किया और उसी ने कहा था कि फराइज़ इस्लाम के मुतालिक पूछा, और जब जाने लगा तो उसने कहा कि अल्लाह की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैं फराइज़ इस्लाम पर ज्यादा नहीं करूंगा, कुछ भी अलग से नवाफिल नहीं पढ़ूंगा, नवाफिल का एहतमाम नहीं करूंगा, लेकिन फराइज़ में कोई कमी भी नहीं करूंगा। तो आपने फरमाया अफलहा इन सदका, अफलहा इन सदका दखल अल जन्नत इन सदका। अगर ये सच्चा है अपने वादे में और सच पर कायम रहा तो ये जन्नती होगा, कामयाब होगा। तो सन 9 हिजरी में आए। अब सवाल ये है कि सन 9 हिजरी में अगर हज फर्ज हुआ सही कौल के मुताबिक, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल मुअख्खर क्यों किया, सन 10 हिजरी में क्यों गए? तो इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि सन 9 हिजरी आमुल वफूद था, वफूद आ रहे थे आपके पास मुख्तलिफ इलाकों से, तो आप उनको इस्लाम समझा रहे थे, दीन समझा रहे थे, दीनी अहकाम से वाकिफ करा रहे थे, इसलिए आपने मुनासिब नहीं समझा कि इस्लाम की तबलीग और इशाअत पर हज के सफर को मुकद्दम करें। लोग आ रहे हैं हमारे लिए और हम चले जाएं मक्का, और सफर भी कोई बहुत हल्का नहीं है, कम से कम 10 रोज का तो सफर था ही, और फिर एक हफ्ता जाने में और एक हफ्ता आने में लगेगा, तो इस तरीके से कुल 25-26 दिन का सफर था। दूसरी वजह यह है कि सन 9 हिजरी के अंदर अभी मुशरिकों का दाखिला मक्के में ममनू नहीं किया गया था। मुशरिकीन और मुवाहिदीन दोनों मिलकर के तवाफ करते थे, और मालूम है कि कुफार मुशरिक नंगे तवाफ किया करते थे, हत्ता कि उनकी औरतें भी ऊपर के हिस्से से रंगी हो जाती थी और निचले हिस्से में भी वो सिर्फ जांगियां पहनती थी और वो भी जालीदार होता। तो इस तरीका का जो गंदा पड़ागंदा माहौल था और शिर्क के जो आसार मौजूद थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब नहीं समझा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की इमारत में काफिले हज को भेजा और फिर बाद में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को सूरह तौबा की इब्तिदाई आयत देकर भेजा, जिसमें हुदैबिया के मुआहिदे से बरात और बेजारी का इजहार था, और ये कि हुर्मत वाले महीने के खत्म होने के बाद, अभी तो ये महीना ज़ुल्क़ादा ज़ुल्हिज्जा का है, लेकिन मुहर्रम जो हुर्मत वाला महीना है, जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर मुशरिकीन होशियार हो जाए, हम जहां भी पाएंगे उनको कत्ल कर देंगे। अब हमारे और उनके दरमियान मुआहिदा नहीं है, बस वो अशहुर हुर्म के इख्तिताम तक है, हुर्मत वाले महीने के इख्तिताम तक है। और पूरे मक्के में और मिना में और मक्के की गलियों में ये ऐलान करा दिया गया कि इस साल के बाद कोई मुशरिक मक्के में दाखिल नहीं होगा और कोई काबा का नंगा तवाफ नहीं करेगा। जब मुकम्मल तरीके से मुशरिकीन के दाखिले पर और नंगे तवाफ पर बैंड लगा दिया गया, तो सन 10 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया। तो एक साल की जो ताखीर थी वो 2 सबब की वजह से, तो वफूद के इस्तेकबाल की खातिर, और दूसरे के माहौल वहां का अभी मक्के का आपके लिए साजगार नहीं था।
वैसे भी समझने की बात है, जो लोग कहते हैं कि सर 5 हिजरी में हज फर्ज हुआ, तो ये बात ऐसे भी लॉजिकली सही नहीं है कि जब मक्का फतह ही नहीं हुआ है, मुशरिकीन के कब्जे में है, उसका तसल्लुत है मक्के के ऊपर, तो हज कैसे फर्ज किया जाता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ ले गए, हुदैबिया के मकाम पर आप रोक दिए गए, जिसको उम्रतुल हुदैबिया कहा जाता है, सन 6 हिजरी ज़ुल्क़ादा के अंदर। बहुत गुफ्त शुनीद हुई, लेकिन मक्के वालों ने जाने नहीं दिया, बैरन वापस कर दिया आपको, कहा कि आप अगले साल आप आइए और हमारी इजाजत से आइए, और 3 दिन ही आपका क़याम हो। वाकया मशहूर है। तो भला अल्लाह ताला कैसे कई साल पहले हज करता, जबकि मुशरिकीन जब आपको उम्रे के लिए नहीं आने दे रहे थे, तो मुख्तलिफ जिहतों से हज के लिए आने वाले मुसलमानों को भला कैसे वो जाने देते? इसलिए सही कौल यह है कि फतह मक्का के बाद सन 9 हिजरी के अंदर या सन 10 हिजरी की इब्तिदा में हज फर्ज हुआ है। बहरहाल, तो इस तरीका से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया है। अब हज की अच्छा, ये और भी देखिए, हज की जो फर्जियत की आयत है, जो गालिबन सूरह आली इमरान की 97 नंबर की आयत है, वलिल्लाहि अला नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा खुशनुदी के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, तक़र्रुब इलल्लाह के लिए, सवाब के लिए लोगों पर वाजिब है कि काबा का हज करे, वो शख्स जो उसकी ताकत रखता, मुस्तती के ऊपर हज। ये आयत भी जो सूरह आल इमरान की इब्तिदाई आयत है, वो भी सन 9 हिजरी के अंदर उतरी है, आमुल वफूद में जब नजरान का वक्त आया था, नसारा का। तो इस तरीके से ये फर्जियत की आयत भी, जो हज की फर्जियत की आयत है, वो भी सन 9 हिजरी में ही नाज़िल हुई। और हदीसें तो बहुत सी है जिसमें फरीज़ हज का जिक्र आया है, बुनियल इस्लाम अला खम्स, और उसके अंदर है हज्जुल बैत। और इसी तरीके से हजरत उमर बिन खत्ताब की हदीस जिब्रील, और भी दूसरी तमाम लगाई। और नबी साहब फरमाया, अय्युहन्नास इन्नल्लाह कतब अलैकुमुल हज्ज फहुज्जु, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है, हज करो। तो एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, कि हर साल? तो आप कुछ देर खामोश रहे, वही का इंतजार करते हैं। उसके बाद आपने पूछा, कहा गया वो शायद? कहा कि अगर मैं हाँ कर देता तो हज हर साल फर्ज हो जाता, और तुम इसकी ताकत नहीं देती, लिहाजा हज सिर्फ जिंदगी में मुस्तकी पर एक मरतबा फर्ज है। बकिया इसके बाद जितना भी हज करे, उम्र करे, वो सब नफिल है, इल्ला ये कि कोई शख्स नजर माने, तो फिर नजर की वफा के तौर पर उसके ऊपर उम्रे की नजर माने तो, या हज की नजर माने तो, या दोनों की माने तो उसकी अदायगी उस पर वाजिब। वरना शरई तौर पर मुस्तती के ऊपर सिर्फ जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज। और जहां तक इसके फवायद और समरात का जिक्र है और मसला है, तो इसका क्या कहना है? मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफ्सुक रजअ कयौमि वलदतहु। बहुत बड़ी फजीलत है। मन हज्ज लिल्लाह, जिसने अल्लाह की रजा के लिए हज किया और रफस नहीं किया, जेमा की बातें, जेमा नहीं किया, जेमा की बातें, शहवानी बातें नहीं की, और इसी तरीके से निकाह नहीं किया, निकाह का पैगाम तक देना जायज नहीं है। निकाह और निकाह के मुल्हकात, जमा और जमा के मुल्हकात, अटैच तमाम चीजें, मुजामियत नहीं करना जायज है। शहवत के साथ बीवी से चिमटना जायज नहीं है। अगर कोई शख्स मुहरिम है तो हालत इहराम में वो अपनी शादी भी नहीं कर सकता, निकाह भी नहीं कबूल कर सकता, सोबत तो दूर की बात है। और अगर बेटी का वली है तो अपनी बेटी की शादी दला, हालांकि वो मुहरिम हो, बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। और लड़का अगर मुहरिम है तो वो अपना पैगाम निकाह किसी मुहरिम को नहीं दे सकता उसकी बेटी के लिए। लेकिन अगर लड़की हज में गई हुई है अपने भाई के साथ, और लड़का हिंदुस्तान में है और उसका बाप यहाँ हिंदुस्तान में है, तो पैगाम में निकाह दे सकता है और अपनी बेटी का निकाह करा सकता है। बहरहाल, तो ये तमाम चीजें हैं, बहुत बड़ी फजीलत है। रजा कयौम वलदतहु उम्मुहु, ऐसे लौटे जैसे लौटेगा जैसे कि माँ के पेट से पैदा हो। और इसके अलावा भी दीनी व दुनियावी बहुत मनफातें हैं। काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ना 1 लाख नमाज के बराबर सवाब दिलाता है। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना 1000 नमाजों के बराबर है। और इसी तरीके से आदमी जब इहराम की चादर पहनता है, सिले हुए कपड़े, कीमती मलबूसात अपने हटाता है, और सफेद 2 चादरों के अंदर वो एक चादर को इजार बनाता है, एक चादर को रिदा बनाता है, कंधे पर रखता है, तो कफन की याद ताजा होती है, मौत की याद ताजा होती है।
मैदान अरफात के इज्तिमाई अजीम को देखता है तो क़यामत का मंजर उसके सामने होता है। मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोगों को देखता है जो कलमे की बुनियाद पर, तौहीद के कलमे की बुनियाद पर, तौहीद की बुनियाद पर मरकज़ तौहीद में इकट्ठे हुए हैं, तो उनके ईमान में इजाफा होता है, सकाफतों का, तहजीबों का तबादला होता है, बहुत से फवाइद हैं। लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, अल्लाह ने कहा कि लोग हज में आए और अपनी मनफियातों में हाजिर, तो दीनी व दुनियावी बहुत सारी मनफात है। इसके लिए पूरा एक तवील और अरीज लेक्चर मतलूब है, बहुत से लोगों ने किताबें लिखी है, बहुत सारे खुतबात मौजूद हैं, तो इसलिए बहुत तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी इब्तदाई तमहीदी गुफ्तगू को इसी पर समेटते हुए अब आपके साथ मौजूद के साथ चलते हैं, बाप के साथ चलते हैं। हज का माना, किताबुल हज, हज की किताब है। हज के मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल अबवाब के तहत लाए गए। हज का माना लुगत में है क़स्द, और किसी ने कहा मुअज़्ज़म शय का क़स्द, और यहाँ इस्लामी और इस्तिलाही माने के अंदर काबतुल्लाह का क़स्द करना मनासिक उम्रा और हज की अदायगी के लिए तक़र्रुब इल्लाह की नीयत से, अल्लाह सुब्हानहू तआला से तक़र्रुब और सवाब की नीयत से, इबादत की नीयत से मक्के का क़स्द करना, काबतुल्लाह का क़स्द करना, मक्के का क़स्द करना मनासिक उम्रा की अदायगी के लिए और मनासिक हज की अदायगी। हज के वाले भी क़स्द और ज़ियारत, और उम्रे के वाले भी क़स्द और ज़ियारत। बहरहाल तो काबतुल्लाह का क़स्द करना मनासिक हज की अदायगी के लिए, आमाले मखसूसा की अदायगी के लिए, तवाफ, सई, वक़ूफ़ अरफा और जो दूसरे वाजिबात है, मिना में ठहरना, मुज़दलिफ़ा में ठहरना, कंकड़ियाँ मारना, बाल मुडवाना, जानवर ज़बह करना वगैरह। और फर्जियत का साल तो मालूम ही हो गया कि सन 9 हिजरी में आमुल वफूद में फर्ज हुआ, और आयत करीब जिससे अल्लाह ने हज को फर्ज किया है मुस्तती लोगों पर, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 97 है, वलिल्लाहि अला से हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबील। और कुछ तफसीलात आपने समाअत की। पहला बाब जो है इस पे या हदीसों के ऊपर बाब कायम किया है वो है बाबुल मवाक़ीत। मवाक़ीत जमा है मीक़ात की, और मीक़ात दो होता है, मीक़ात ज़मानी और मीक़ात मकानी। तो हज के लिए ये दोनों मीक़ात, हज के महीने मालूम है, उन्हीं महीनों के अंदर हज की नीयत से मक्का पहुंचा जा सकता है, और हज की अदायगी के अय्याम भी मखसूस। अल्लाह ताला ने फरमाया अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज मालूम महीनों के अंदर अदा होता है, शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा। ज़िलहिज्जा की 10 तारीख आम तरीक़े से फ़ुक़हा कहते हैं, किसी ने कहा 13, किसी ने कहा पूरा ज़िलहिज्जा, बहरहाल। लेकिन अमाल जो हज के शुरू होते हैं वो 8 ज़िलहिज्जा से। आदमी मिना जाता है, 9 को अरफात जाता है, दिन गुजार के 10 की रात में मुज़दलिफ़ा आता है, जहाँ इशा फजर मगरिब इशा के वक्त में जब ताख़ीर से पढ़ता है, फजर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ के जिक्र दुआ में मशगूल होता है। जब रास्ता नजर आने लगता है तो फिर वो मुज़दलिफ़ा से 10 की सुबह पहुंचता है मिना, और आखिरी जमड़े को, जमड़े अक़बा को कंकड़ी मारता है, फिर वहां से आता है, बाल नाखून उतारता है, और उसके बाद वो इहराम की चादर से आजाद हो। फिर उसके बाद अगर कुर्बानी करना तो पहले कुर्बानी कर ले, फिर बाल नाखून करे। लेकिन अगर कुर्बानी अब बैंक के जरिए होती है, हुकूमती सतह पर होती है, बैंक के जरिए होती है, तो फिर वो अपना होती रहेगी, उसके लिए इंतजार में नहीं रुकना है। जमड़े अक़बा को कंकड़ी लगाने के बाद बाल अपना उतरवा लीजिए, और उसके बाद जरूरी हो नाखून वगैरह लेना है, और दूसरे बाल, बगल के बाल, अंडर आर्म्स या इसी तरीके से जेर नाफ, तो उसको आप ले, नहीं है जरूरत तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाल उतरवाना है सरकार। अब कसर कर ले या पूरे तौर पर हलक कर ले, बेहतर है कि हलक कर। और उसके बाद नहा धो करके सिले हुए कपड़े पहने, खुशबू लगाए, और फिर जाए तवाफ़ काबा करे, जिसको तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं 10 तारीख को। और अगर हज तमत्तो किए हुआ है, उम्रा करके हलाल हुआ है, और 8 तारीख को उसने अपनी होटल से, अपनी जाए इक़ामत से हज की नीयत की है, तो फिर उसको तवाफ़ काबा के बाद, तवाफ़ ज़ियारत के बाद सफ़ा मरवा की सही भी करनी होगी। फिर उसके बाद 11, 12 और 13 को, या 11, 12 को, 2 ही दिन पर अगर इत्तफाक करता है तो ज़वाल शम्स के बाद तीनों जमरात को, पहले जमरात को, दूसरे जमरात को, तीसरे जमरात को 7-7 कंकड़ियां लगा दी। और जब मक्के से चलाने का वक्त हो जाए कि अब आखिरी काम है, तो जाकर के काबा का तवाफ़ अलवदा करे, और 2 रकात नमाज पढ़ करके वहां से हटे। औरतों पर भी ये तवाफ वाजिब है, मगर अगर वो आयजा हो गई है
तो सफर को मुलतवी नहीं करेंगी, तवाफ़े वदा हाइज़ औरत से मुआफ है। यह है तरीका। बहरहाल असल में ये ज़िम्नन बात आ गई कि मीक़ात ज़मानी, हज के मुकर्रर अय्याम में, उम्र का तो कोई दिन मुकर्रर नहीं, साल भर आप उम्र कर सकते। तो मीक़ात ज़मानी सिर्फ हज के लिए। मीक़ात मकानी, मीक़ात यानी वो मुकर्रर जगह जिसका उबूर करना, जिसको पार करना उम्रा और हज करने वाले के लिए बगैर इहराम की चादर में आए हुए और बगैर उम्रा या हज की नीयत किए हुए गुजरना दुरुस्त नहीं है। अगर वो गुजर जाता है और नहीं लौटता फिर मीक़ात पर, और यहाँ से नीयत नहीं करता है, इहराम की चादर में नहीं आता है, तो उसको एकदम लगेगा। तो बहरहाल ये मीक़ात और ये काबा की अजमत और उसके तक़द्दुस और उसके एहतराम के पेश नज़र ये जगह मुतय्यन की गई है कि काबतुल्लाह को आ रहे हो, मोहतरम और मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत के लिए आ रहे हो, मनासिक हज उम्रा की अदायगी के लिए आ रहे हो, मुतय्यना मकाम से अपने लिबास को उतारो, इहराम की चादर में आओ, लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए आओ। ये सब काबा के एहतराम के लिए। एक मकाम दूर मकाम से ही तुम अपने आप को एक तैयार रखो कि तुम्हें मखसूस इबादत के लिए जा रहे। यह असल में मक्का की अजमत, काबा की अजमत और इन मनासिक उम्रा और हज की अजमत के पेश नज़र हुदूद मुतय्यन कर दिए गए कि उन हुदूद से आप तजावुज नहीं कर सकते जब तक कि आप इहराम न दें। अब जाहिर है कि इहराम तो मर्द ही के लिए है, औरत तो अपने किसी भी कपड़े के अंदर इहराम बांधेगी, उसका जिक्र आएगा आगे। लेकिन वो जिस कपड़े में भी इहराम अपना पहनती हो, जो भी उसका लिबास हो, साथी लिबास हो, तो उसको नियत करनी पड़ेगी। और नियत तो जाहिर है कि दिल का नाम है। तक़र्रुब इल्लाह की नियत से उम्रा और हज के लिए जा रहे, ये नियत दिल में होनी चाहिए। लेकिन मनासिक कौन सा मनसक अदा करने, उम्रा करने जा रहे हैं, हज की कौन सी किस्म करने जा रहे हैं, हज क़िरान है कि हज इफ़राद है कि हज तमत्तु है, उसको अल्फाज के जरिए भी बोलना पड़ेगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा बिउम्रतिन, या लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, या लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, हज इफ़रादिन, या लब्बैक अल्लाहुम्मा हज तमत्तुइन, या मुतमत्तिअन मिनल उम्रा मिनल उम्रति इलल हज, या अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन क़िरानन या क़ारिनन। तो इस तरीके से आपको मनासिक की नौयत वाज़ेह करनी पड़ेगी। लेकिन ये नियत कि मैं अल्लाह के लिए हज करता हूँ, उम्रा करता हूँ और मुतवज्जह होता हूँ काबा शरीफ की तरफ मनासिक की अदायगी के लिए, ये जो अल्फाज हैं ये तो बिदअत है किसी भी इबादत के अंदर, अगर इस तरीके से नियत का आप इजहार करते हैं तो। लेकिन मनासिक का ये इजहार है। कुछ उलमा ने कहा कि हज में भी जो आप कहते हैं लब्बैक उम्रतन, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, ये नियत नहीं है, बल्कि उस मनसक का या हज और उम्रे की नौयत का आप इजहार कर रहे हैं कि कौन सा हज आप। लेकिन वो नियत के जो मखसूस अल्फाज है जो अहले बिदअत करते हैं वो यहाँ भी जायज नहीं। बहरहाल तो ये मीक़ात है। अच्छा देखिए अल्लाह की रहमत ये देखिए कि चारों तरफ से, दुनिया की चारों तरफ से आने वाले, मगरिब से, मशरिक से, शमाल से, जुनूब से जो भी आ रहे हैं, सबकी लिए हद मुकर्रर अलग अलग की गई है। अगर पश्चिम वालों को कहा जाता है कि पूरब में आना है तो उनको हजारों किलोमीटर मुमकिन है कि घूम के आना पड़ता है, या सैकड़ों किलोमीटर ये जहमत गवारा करनी पड़ती। ये जो जिधर से आ रहा है उसी तरफ उसके उसी रास्ते में मीक़ात मुतय्यन कर दी। हत्ता कि जब लोगों ने कहा, इराक वालों ने, जिनकी मीक़ात करने मनाजिल ही होती थी जो नजद वालों की है, तो उन्होंने कहा कि साहब कर्न हमारे रास्ते से दूर है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि इसके सीधे में कौन सी जगह है? तो कहा कि साहब ज़ात-ए इरक़ है, जो कर्न मनाजिल के बराबर में हमारे रास्ते में पड़ता है। कहा चलो उसको मुकर्रर कर दे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुवक्कत कर दिया। खलीफा राशिद थे। और अब बाज़ हदीसें भी आई है जिनकी तरज़ में कुछ कलाम है, मुमकिन है कि कई तुरुक की वजह से हदीस में तक़वियत पहुंच जाती हो, तो मरफू भी हो सकती है और मौक़ूफ़ तो है ये सही कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इराक वाले के लिए ज़ात-ए इरक़ मुतय्यन किया। तो इस तरीका से तमाम जिहतों से आने वालों के लिए मीक़ात मुतय्यन किया। सुभान अल्लाह, अब शाम फतह नहीं हुआ है, इराक फतह नहीं हुआ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीक़ात मुकर्रर करे कि शाम से आने वाले इधर से फला मकाम पर जुहफा में, और इराक से आने वाले ज़ात-ए इरक़ में, या हजरत उमर ने मुतय्यन किया। ये इस बात की तरफ इशारा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम दूर दूर तक फैलेगा, हर चार दागे आलम में फैलेगा। इसलिए आपने शिमाल, जनूब, मशरिक़, मग़रिब सबसे आने वाले लोगों के लिए आपने हद मुतय्यन की। ये इसमें इशारा था कि इंशाअल्लाह ताला इस्लाम फैलेगा शाम में भी और इराक में भी, और वो सब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के ज़माने में मुतहक्क़क़ हो गया।
تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے میقات کی تفصیلات. پہلی حدیث ہے اس باب کی. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرض المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مکہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے میقات مقرر کی، جگہ متعین کی، جہاں سے حاجی کا، معتمر کا، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کا بغیر احرام میں نیت کے ہوئے آگے گزرنا جائز نہیں ہے. مدینہ والے کہاں سے میقات، کس میقات سے احرام باندھیں گے؟ ذوالحلیفہ سے. اب یہ ذوالحلیفہ کچھ دوری پر ہے، 6-7 میل کے واقع پر دوری پر ہے. 11-12 یا 13 کلومیٹر کی دوری ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں نے 13 کلومیٹر لکھا ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے نہیں باندھا، آپ اپنی مسجد سے نہیں باندھا، جو میقات اللہ نے مقرر کیا اس میقات سے باندھنا. آپ کوئی کہہ کے نہیں میں مسجد نبوی سے لے کر نکلتا ہوں، کہا جائے گا کہ یہ خلاف اولا ہے، خلاف سنت. تو آپ نے ذوالحلیفہ پہنچے، آپ وہاں ذوالحلیفہ پہنچے، رات میں وہاں قیام کیا، صبح آپ نے غسل کیا، احرام کی چادر پہنی، فجر کی نماز پڑھی، احرام کی چادر میں آیا، اس کے بعد آپ نے تلبیہ شروع کیا. ذوالحلیفہ اصل نام یہی ہے، ذوالحلیفہ. کہتے کوئی پودا تھا، کوئی پودا ہوتا ہے حلیفہ نام کا، جو اس جگہ پہ ہوا کرتا تھا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں ابیار علی کہتے ہیں. اب کچھ کنویں تھے، ممکن ہے کہ حضرت علی کی طرف منسوب ہوئے ہو، یا حضرت علی نے ان کو کھدوایا ہو، یا ان کی نگرانی میں ہوتے ہو. اب کیا وجہ تسمیہ اللہ جانے، ابیار علی، آبار علی، آج کل عام زبان میں وہ کہتے ہیں، لیکن اس کا جو اسلامی اور شرعی نام ہے وہ ہے ذوالحلیفہ یا ذوالحلیفہ. تو یہ مدینہ والے کے. اور اہل شام کے لیے، جو لوگ شام سے آ رہے ہیں، اس کو سیریا کہتے ہیں، لبنان سے آ رہے ہیں، اردن سے آ رہے ہیں، فلسطین سے آ رہے ہیں، مصر سے آ رہے ہیں، سوڈان سے آ رہے ہیں، بلاد مغرب سے آ رہے ہیں، اندلس اور اسپین سے آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہے ہیں. ایسے تمام لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اگر زمینی راستے سے آتے تو جوحفہ سے. لیکن جوحفہ خراب جگہ ہو گئی، برباد جگہ ہو گئی، وہاں آبادی ختم ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ مدینے کی گرمی کو، بخار کو، وبائی امراض کو جوحفہ میں منتقل کر دے. اور سیلاب آیا اور وہاں کی آبادی ختم ہو گئی. تو جوحفہ کے بالمقابل ایک جگہ رابغ ہے، جو بڑا شہر ہے، آباد شہر ہے، تو وہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں اگر زمینی راستے پہ آ رہے ہیں. اور فضائی راستے پہ اگر آ رہے ہیں اور رابغ یا جوحفہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں یا اس کے سیدھ سے گزر رہے ہیں، تو پھر آپ کو وہیں سے احرام نیت کرنی پڑے گی. احرام تو کچھ پہلے ہی سے مرد حضرات کر لے، عورت تو اپنے کپڑے ہی میں کرتی ہے تو وہ تو کپڑا پہن کے جائے، لیکن مرد حضرات اپنے بستر پر بھی، اپنے سیٹ پر بھی بیٹھے بیٹھے اپنے ازار کو پہن کر کے، پینٹ پیجامہ جاگیاں وغیرہ کو کھول دیں گے اور اوپر کی شرٹ نکال کر کے کندھے پر رکھ لیں گے. کچھ دیر پہلے احتیاطاً آدھا گھنٹہ پہلے یہ کام کر لیں، کیونکہ ہوائی جہاز تو کافی تیزی سے گزرے گا. البتہ جب دیکھے کہ صاحب 2 منٹ رہ گیا ہے تو من بابل احتیاط 2 منٹ گزرنے سے پہلے بھی، خاص سے پہلے لبیک اللہم عمرۃ کہتے، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتے چلے. اگر محاذات میں نہیں جا رہے ہیں، سیدھے مغرب سے آ رہے ہیں اور کہیں جوحفہ اور کہیں قرض منازل وغیرہ سے واسطہ نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی میقات جدہ ہوگی. وہاں اتریں گے، پھر وہاں سے ایئرپورٹ سے وہ احرام پہنیں گے اور چلیں. لیکن اگر محاذات سے سیدھ سے گزر رہے ہیں، جوحفہ کے یا قرض منازل کے، تو پھر آپ کو، یا یلملم سے گزر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے بالمقابل آ کر کے نیت باندھ احرام پہننا پڑتا. تو شام والوں کے لیے جوحفہ ہوا، اور شام والے کے ساتھ ہم نے گنایا کچھ لوگوں کو، اردن، جارڈن وغیرہ سے لے کر کے فلسطین اور مصر اور سوڈان اور افریقہ، سب بلاد مغرب وغیرہ سب. اور اہل نجد کے لیے قرض منازل، ریاض، قصیم سے آ رہے ہیں یا خلیجی ممالک سے جو لوگ آ رہے ہیں، وہ سب قرض منازل میں، جس کو قرض الثعالب کہتے تھے. وہاں بھیڑیے رہتے تھے، قرن کہتے چھوٹے پہاڑوں کو،
उन पहाड़ों के दरमियान भेड़िए उस जमाने में ज्यादा रहते थे, तो करने सालिब कहते थे, करने मनाजिल, करने सालिब। अब आजकल की इस्तेलाह में उसको कहते हैं सैल, सैल कबीर। ये ताइफ और मक्के के रास्ते में। तो ये इन लोगों के लिए, खलीजी ममालिक से आने वालों के लिए, इराक से आने वालों के लिए, रियाज कसीम वगैरह के इलाके से आने वालों के लिए, उनके लिए है करने मनाजिल। और यमन वालों के लिए है यलमलम, एक वादी का नाम है यलमलम, पहाड़ के नीचे जो वैली होती है उसका नाम यलमलम। तो यमन वाले वहां से आए, अब उसको आजकल की इस्तेलाह में सादिया कहते हैं, एक कुएं का नाम है सादिया, तो उसी की तरफ निस्बत करते हैं। जब मुमकिन है कि यलमलम की ही किसी लंबी वादी के एक सिरे पर वो कुआं रहा होगा, तो सादिया आजकल की इस्तेलाह में कहते हैं। तो यमन से लोग आते हैं जमीनी सफर करके, या जहाज से आते हैं पानी वाले शिप से, तो आप वहां से कर लें। और अगर हवाई जहाज से चलते हैं तो एयरपोर्ट से चल करके, अगर यलमलम के मुहाजात से गुजरते हैं तो वहां कर ले। सादिया के मुकाबले से जब जहाज गुजरे तो लब्बैक की सदाएं बुलंद करें। और इसी तरीका से जब हवाई जहाज का चलन नहीं था, या हवाई जहाज महंगा था और पानी के जहाज से भी हिंदुस्तान से लोग जाया करते थे, तो हिंदुस्तान के लोग और चीन के लोग और इसी तरीके से चले जाइए, और भी मालयेशिया और इंडोनेशिया से जो जहाज जाया करता था बहरे हिंद बहरे अरब होकर के, तो फिर उन लोगों की भी मीकात यलमलम हुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चार तरफ के लोगों के लिए, मदीना वालों के लिए जुल्हुलैफा, शाम वालों के लिए जुहफा यानी राबिग, अहले नज्द के लिए कर्द मनाजिल, और अहले यमन के लिए यलमलम। और यही कर्द मनाजिल इराक वालों के लिए भी है, लेकिन इराक वालों के लिए आसानी है ज़ाते इर्क से, तो वो ज़ाते इर्क से अब नियत करते हैं, इहराम पहनते हैं। फरमाया आपने कि ये सब हुन्ना लहुन्ना, ये सब मीकात उन शहर वालों के लिए है जिनका जिक्र हुआ। वले मन अता अलैहिन्ना, जो वहां आकर के वहां से गुजरे, चाहे वो शहर का बाशिंदा ना। मसलन अगर कोई शाम से, मुल्क के शाम से मदीना आ जाता और मदीने के रास्ते जा रहा है, तो फिर उसकी मीकात जुहफा, जो अब राबिग है, वो ना होकर के मदीना का जुल्हुलैफा। अगर कोई अफ्रीकी आ जाता है मदीना, पहले अफ्रीका से चलता है और वो सीधे मदीना आता है, और मदीने से फिर वो चलता है, तो जुल्हुलैफा उसका मीकात। तो कहा आपने कि ये सब जगह उन शहर वालों के लिए है, वलिमन अता अलैहिन्ना, और उन लोगों के लिए जो वहां से गुजरे, अगरचे वो वहां के बाशिंदा ना हो। जैसे हिंदुस्तानी लोग जाते हैं तो उनका जहाज से भी जाए, बहुत से लोगों को तो जद्दा उतारते हैं, तो उनके कर्द मनाजिल उनके सामने आता है, तो वहां से वो इहराम नियत करते हैं। और कुछ लोगों की जहाज डायरेक्ट मदीना होता है, फिर मदीना में अय्याम गुजार के वो जमीनी रास्ते से आते थे, जुल्हुलैफा उनका मीकात होता है। मिम्मन अरादल हज वल उम्रा, ये मीकातें जो मकानी है, ये किसके लिए है? उस शख्स के लिए जो हज और उम्रे के इरादे से गुजरना चाहे। लेकिन जो जा रहा है किसी तिजारत के लिए, किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने के लिए, अभी हज उम्रे का उसका इरादा नहीं है, तो उसके लिए मीकात की कोई पाबंदी नहीं है, वो जाए आए। और खास करके वो आदमी जो डेली आता जाता है या काम करता है, जद्दे से मक्का आता है और काम करके चला जाता है, या कोई सामान बेचने वाले आते हैं और जाते हैं, तो उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अहले इल्म ने कहा कि पहली मर्तबा अगर कोई दूर दराज इलाके से आ रहा है और मक्का जा रहा है, तो उसको इहराम बांध के जाना चाहिए। हज के अय्याम हो तो उम्रा और हज कर ले, और नहीं तो उम्रा करके वापस हो, और फिर अपना काम भी अंजाम दे। लेकिन बहरहाल मीकात या इहराम में आने का जो मसला है, वो उसी के लिए है जो हज और उम्रा करे। तो बाज़ उलमा ने कहा कि अगर हज उम्रे का नहीं भी इरादा है, तो तुमको इरादा करना होगा, क्योंकि तुम मक्का जा रहे हो, हरम में जा रहे हो, वो मुहतरम मकाम है, वहां बगैर इहराम के नहीं जा सकते, खास करके जब तुमने हज और उम्रा नहीं किया है। वमन काना दून ज़ालिक, और जो मीकात के अंदर में रहता हो, तो फिर वो अपनी जगह से ही इहराम करेगा, उसको पीछे लौटना नहीं है। मीकात 10 किलोमीटर अगर हमारा मीकात पीछे है और हम 10 किलोमीटर आगे है, तो हमको बड़ा पीछे लौटना नहीं है, हमको अपने घर से ही नियत करनी है, उम्रे की नियत से हो वहां पहुंच जाए। या अगर हज इफराद करना है, तो हम वहीं से पहुंच जाए, हज की नियत कर ले। या हज क़िरान करना है, और अगर हज तमत्तु है तो पहले उम्रे की नियत से जाए, और उम्रे के बाद हलाल हो जाए, और 8 ज़िलहिज्जा से हज की नियत करे। तो जो अगर उसके अंदर का है, वो अंदर ही से कर लेगा। 40 किलोमीटर मक्के से दूर है, तमाम मीकात के अंदर का है, वो वहीं से कर लेगा।
बहरहाल सारी मीकात जो है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह आसान जगह है, और लेकिन सबसे ज्यादा दूर से जो मीकात है वो मदीने की मीकात है, जो तकरीबन 400 किलोमीटर से ज्यादा पड़ता है। बकिया लोगों के जो सैल है वो शायद 75 किलोमीटर। उसके बाद जुहफा है, वो जरा लंबा है जी। इसी तरीके से और भी जो मकामात है, यलमलम वगैरह लोगों ने कहा कि गालिबन कुछ 120-125 किलोमीटर। लेकिन सबसे लंबी दूरी से जो आदमी आ रहा है वो मदीना के रास्ते जो आता है, तो जुल्हुलैफा मीकातों में सबसे लंबा मीकात है, सबसे दूरी पर मीकात वाक़ है। अहले मक्का अगर हज करेंगे तो हज की नीयत से वो घर से ही एहराम बात करके 8 तारीख को निकलेंगे। हत्ता अहलो मक्का मिन मक्का, मक्के ही से एहराम बांधेंगे। लेकिन अगर उनको अहले मक्का को उम्रा करना है तो जमहूर उम्मत के उलमा ने ने कहा कि उनको अदना हिल में जाना पड़ेगा, और वो अदना हिल करीब तरीन हिल जो हरम के से बिल्कुल लग के है वो मकाम तनईम है, जिसको आजकल शुमैसी कहते हैं, या लोग मस्जिद आयशा के नाम से उसको मशहूर किए हुए, क्योंकि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने लैलतुल नफ़र में 14वीं की रात को ज़िलहिज्जा को जब आपने कहा तवाफ़ वदा करना है, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं एक उम्रा और करूंगी, क्योंकि मैंने उम्रा किया नहीं था मजबूरी की वजह से, और उम्रे पर हज की नियत का इजाफा कर दिया गया था। तो मैं मेरी बहनें जाएंगी 2 तवाफ और 2 सही करके, और मैं सिर्फ एक ही तवाफ और एक सही में हज उम्रा का सवाब पाकर जाऊं, नहीं मुझे एक उम्रा और करना। तो आपने उनके भाई अब्दुर्रहमान को हुक्म दिया, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को, कि जाओ अपनी बहन को मकाम तनईम से नियत करा कर ले आओ और उम्रे की अदायगी करवा जाए। तो अगर मक्के वाला उम्रा करेगा तो अदना हिल में चला जाएगा। अब अदना हिल यानी हरम शरीफ से या मस्जिद काबा से सबसे करीब तरीन जो जगह है वो वही मस्जिद तनईम है, मकाम तनईम। कोई अगर चाहे अरफात चला जाए और वहां से एहराम बांध करके आवे उम्र की तो भी सही है, क्योंकि मैदान अरफात जो है वो हुदूद हरम के बाहर है। कोई मकाम जिराना चला जाए, कोई और किसी इलाके में चला जाए, हुदूद हरम से बाहर जाए। लेकिन अगर हज की नीयत है तो फिर वो अपने घर से ही 8 तारीख को मक्का वाला एहराम बांध करके निकलेगा। मैं समझता हूं कि मसला बहुत वाज़ेह हो गया होगा। अब इसी सिलसिले की एक हदीस और है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस है। इसी बीकात के सिलसिले में कोई फर्क नहीं है, बस लफ्ज़ का फर्क है। अल्लाह रसूलुल्लाह क़ाला युहिल्लु अहलुल मदीना, वहां वक़्त है इब्न अब्बास की रवायत में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवक्कत किया, मुकर्रर किया। यहाँ पर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युहिल्लु अहलुल मदीना, अहले मदीना तलबिया करेंगे यानी एहराम की नियत करेंगे। कहां से? अहले मदीना जुल्हुलैफा से, और अहले शाम जुहफा से जो अब राबिक में तब्दील हो गया है, और अहले नजद कर्ज से यानी कर्ज मनाजिल से जो सैल में है इसमें। और आगे का वो बलगनी, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मुझे ये खबर पहुंची है कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया वो युहिल्लु अहलुल यमन मिन यलमलम, और यमन वाले यलमलम से कर। तो चारों मीकात आ गई, यलमलम या अलमलम, तो सिर्फ लफ्ज का फर्क था वक्ता, और यहाँ युहिल्लु अहलुल मदीना, बाकी तमाम मजमून वही है जो हम पढ़ चुके। इस बाब की तीसरी हदीस जिसके ऊपर उन्होंने कायम किया है, बाब मा यलबसुल मुहरिम मिन अस्सियाब, मुहरिम कौन सा कपड़ा पहने। मुराद है मर्द, औरत तो कोई भी कपड़ा पहन सकती है जो वो पहनती है, बस उसके लिए भी कुछ पाबंदी है जिसका जिक्र आएगा। लेकिन असल में है मुहरिम को पहनना, कि मुहरिम क्या पहने, मर्द क्या पहने, कौन से कपड़े पहने, किस कपड़े से इज्तिनाब करे। हदीस देखिए, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा अन्ना रजुलन क़ाल या रसूलल्लाह मा यलबसुल मुहरिमु मिन अस्सियाब, मा यलबसुल मुहरिमु मिन अस्सियाब, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यलबसुल क़मीस वला अल-अमाइमा वला सराविलाति वला अल-बरालिद वला अल-खिफाफ़ इल्ला अहदुन ला यजिदु नअलैनि फलयलबसिल खुफ़ैन वलयक़तअहुमा अस्फ़ल मिन अल-कअबैन वला यलबसु मिन अस्सियाब शय'अन मस्सहु ज़अफ़रान औ वर्स। वलिल बुखारी वला तंतक़िबिल मुहरिमा वला तलबसुल क़ुफ़ासैन। मर्दों के ताल्लुक से हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते कि एक शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह मा यलबसुल मुहरिमु मिन अस्सियाब, मुहरिम कौन सा लिबास पहने। तो रसूलुल्लाह ने कहा ला यलबस अल-क़ुब्स
قمیص کی جمع ہے قبس، جس میں آستین ہوتی ہے، یہ قمیص نہ پہنے. عمائم نہ باندھے، امامہ کی جمع ہے. سراویلات، دونوں پاؤں میں جو پہنتے ہیں، پائجامہ، پتلون، پینٹ، فل پینٹ، یہ نہیں پہنے. ولل بڑانس، اور سر کا ایک لباس ہوتا ہے جو اہل مغرب پہنا کرتے تھے، آج کل لوگ اترا ڈالتے ہیں، یہ جیسے ہم نے تربوز پہنا ہوا ہے، ٹوپی، تو یہ سب سر کا لباس نہ پہنے، یعنی سر ان کا کھلا رہے. ولل خفاف، اور خف کی جگہ موزے بھی نہ پہنے، چاہے چرمی موزے ہو یا لائلون کے ہو یا سوت کے ہو. مگر وہ شخص جس کو نال نہ ہو، فلیلبس الخفین، تو وہ خفین پہن سکتا. لیکن ایک شرط لگایا آپ نے، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، لیکن اس کو کاٹ کے ٹخنے کے نیچے لے آئے، اوپر سے جو پنڈلی میں پہنا ہوا ہے اس حصے کو کاٹ لے اور لے آ کر کے وہ ٹخنے کے نیچے کر کے چھوڑ، یعنی دونوں ابھری ہوئی جو ہڈی دائیں اور بائیں قدم کی پاس ہوتی ہے، جہاں پر پنڈلی اور قدم کا جوڑ لگتا ہے، دائیں بائیں جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کے نیچے لا کر کے کاٹ کے چھوڑ. اس طرح کا موزہ آج کل ساکس ملتا بھی ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے جو جوتا چپل نہ پائے، اس طرح کا نہ پائے جس کے اندر یہ کام تخلے کھلے ہوتے ہیں. تو یہ غربت کا عالم تھا لوگوں کی، جس وقت نال نہیں ہوتا تھا ان کو جو آگے سے پہنا جائے اور ٹخنا ان کا ایڑی اور ٹخنا ان کا کھلا رہے. تو آپ نے فرمایا تو ساکس پہن لو، موزے پہن لو، لیکن اس کو کاٹ کے لانا ہوگا. یہ حکم آپ نے کہاں فرمایا تھا؟ مدینے. آگے آئے گی روایت حضرت عبداللہ بن عباس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، عرفہ کے خطبے میں آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس نال نہ ہو وہ موزہ پہنے. اس میں کاٹنے کا ذکر نہیں. تو کیا کاٹنا چاہیے کہ کاٹنا نہیں چاہیے، یہ مسئلہ اختلافی ہے، ہم اس پر آئیں گے تو گفتگو کریں. اس وقت آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ محرم کیا پہنے، تو آپ نے کہا محرم یہ نہ پہنے، یہ نہ پہنے، یہ نہ پہنے. 5 چیزوں کا ذکر کیا: قمیص نہ پہنے، امامہ نہ پہنے، پائجامہ نہ پہنے، ٹوپی نہ پہنے، موزہ نہ پہنے. 5 چیزوں کا ذکر کیا. سوال ہو رہا ہے کیا پہنے، اور آپ جواب دے رہے کیا نہ پہنے. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے، لیکن بہت مطابق ہے اور حکیمانہ جواب ہے اور بلیغانہ جواب ہے، کیونکہ جو کپڑے نہیں پہننے ہیں محرم کو، ان کی تعداد یہی 5 ہے. باقی اور تمام چیزیں پہن سکتا ہے، نظارہ چشمہ پہن سکتا ہے، انگوٹھی پہن سکتا ہے، گھڑی پہن سکتا ہے، کمر بیلٹ پہن سکتا ہے، سفید چادر پہنے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے. تو اسی لیے جن کپڑوں کو نہیں پہننا ہے ان کی تعداد محدود ہے، پہنے جانے والے کپڑے اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو کتنی تفصیل بتاتے، یہ پہنو، یہ پہنو، یہ پہنو، یہ پہنو. تو آپ نے صرف اصولی طور پر 5 چیزوں کا ذکر کر دیا کہ یہ نہیں پہننا، اس کے علاوہ سب جائز، سب پہنے. ماشاءاللہ. البتہ یہ کہ جو بھی کپڑا پہن رہے ہو، ظاہر ہے کہ سفید کپڑا بہتر ہوتا ہے، عام طریقے سے لوگ سفید کپڑے میں ہوتا ہے، تو اس کے اندر زعفران اور ورس لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے. زعفران اکثر آپ جانتے ہیں کہ خوشبو ہوتی ہے، خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ورس بھی ایک پودا ہوتا ہے جو خوشبودار ہوتا ہے، اور اس کے اندر رنگ آتا ہے، سرخ رنگ ہوتا ہے یا زرد رنگ کا ہوتا ہے، سرخی مائل، وہ بھی خوشبودار ہوتا ہے. تو خوشبو گویا کہ زعفران کی اور ورس کی خوشبو کپڑے میں احرام میں نہیں لگانی ہے، تو بدن میں بدل جا اولا نہیں لگانی، احرام میں آنے کے وقت بدن میں نہیں لگانا. اگر کل لگایا تھا اور احرام کے لیے آئے تو غسل کر لیا، جسم کو ممکنہ حد تک رگڑ کے دھویا، اور اس کے بعد کل رات کی لگائی ہوئی خوشبو کا اثر غسل کے بعد بھی ہے، اور کوئی جسم کو سونگتا ہے تو اس سے خوشبو اس کو سگائی دیتی ہے، تو اس سے کوئی حد نہیں. لیکن جسم میں اور کپڑے میں احرام کے وقت میں خوشبو نہیں لگائے گا. تو کہا گیا کہ زعفران اور ورس آپ کے کپڑے میں لگا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ حکم مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، کہ ان کے کپڑے میں زعفران اور ورس نہیں ہونا چاہیے اور کوئی دوسری خوشبو بھی نہیں ہونی چاہیے. تو مرد حضرات کے لیے تو آپ نے سمجھا کہ ان کا سر کھلا رہے گا، قمیص نہیں پہنیں گے جس سے آستین ہوتی ہے، پائجامہ نہیں پہنیں گے، پینٹ نہیں پہنیں گے، بلیزر نہیں پہن سکتے، یا اس طریقے سے جو پتلون ہے. اور اگر چپل جوتا آگے کا ہے جس کے اندر آپ نے پنجہ تو داخل کر دیا، لیکن بقیہ حصہ آپ کا کھلا ہوا ہے اور ٹخنا، تو الحمدللہ. نہیں تو پھر موزہ پہننا ہے تو اس کے سلسلے میں
हुक्म में इख्तिलाफ है कि क्या उसको काटना पड़ेगा टखने के नीचे या नहीं, इसका जिक्र भी इंशाल्लाह अल्लाह चाहता है दूसरी हदीस के अंदर। औरतों के ताल्लुक से आपने फरमाया कि वला तंतकिबिल मुहरिम, हालत एहराम में औरत निकाब नहीं पहनेगी। ये नकाब जिससे चेहरा को ढकती है, जो चेहरे का लिबास है, अलबत्ता आंख भौं वाला कुछ हिस्सा खुला होता देखने के लिए, ये जो नकाब है ये नहीं पहने। तो क्या पहनेगी? मुंह खुला रहेगी, रखेगी। लेकिन जब अजनबी आवे तो सही कौल में पर्दा करना वाजिब। उसके लिए ऊपर से जो अबाया डालती है तो उसके ऊपर से फेस पीस होना चाहिए जिसको वो लटका ले, या कोई ओढ़नी वगैरह हो, खेमार हो, जिसको खींच करके वो घूंघट कर ले। और जब काफिला हट जाए, अजनबी ना हो, या रात है, अपने सीट पर बैठ करके फ्लाइट में चल रही है या बस में चल रही है, सफर कर रही है, लाइट ऑफ कर दी गई है तो चेहरा खुला है। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन हो और लोगों से वास्ता हो, अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रवायत है कि जब काफिला गुजरता हमारे सामने से तो हम सदलत इहदाना अला वजहिहा मिन रासिहा, सर के ऊपर से हम अपने कपड़े को, अपनी जिलबाब को, अपनी बड़ी चादर को खींचकर घूंघट कर लिया करते थे। और जब वो काफिला गुजर जाता तो फिर हम अपने चेहरे को खोल लिया करते थे। लेकिन ये यहाँ से नकाब लग करके नहीं होगा। कुछ लोग और कह के अच्छा नकाब लगाते हैं, औरत लगा रही है और फिर ऊपर से भी फेस पीस रख रही है, आगे में नकाब से मना किया है। अब नकाब सिर्फ हो या नकाब हो और उसके ऊपर से फेस पीस लटके या घूंघट कर ले, ना नहीं मना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि नकाब नहीं। तो ये याद रहे कि चेहरा छुपाना है सही कौल के मुताबिक। लोग चेहरा खुला रखते हैं, उसमें भी गोगल्स वगैरह डाल लेते हैं। तो अब सोच लीजिए कि जवान औरत हो तो क्या हालत होगी उसकी और कैसा मंजर होगा। तो इसलिए अजनबियों से पर्दा करना जरूरी है। और वो अलग चाहिए, ऊपर से लटकना चाहिए, न कि नकाब वाली शक्ल होनी चाहिए। तो एक चीज तो इस बात की पाबंदी करे औरतें कि उनको नकाब नहीं पहनना है, लेकिन चेहरा ढांकना। दूसरी बात का वला तलबसुल कुफ़्फ़ाज़ैन, और दस्ताने नहीं पहने। मोजा पहन सकती, जूती पहनेगी, सैंडल पहनेगी, जो चाहे पहने, लेकिन दस्ताना नहीं पहने, हाथ खुला रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई हाथ की तरफ देख रहा है तो अपने अबा के अंदर हाथ वो छुपा सकता। हाथ में मिसाल के तौर पर हीरा लगी हुई है, मेहंदी लगाई हुई है, हिन्ना लगाई हुई है, और इसी तरीके से सोने की अंगूठी वगैरह एक आध दो डाली हुई है, और कोई हाथ को देख रहा है तो अपने अबा से उसको थोड़ी देर के लिए पर्दा कर ले। लेकिन वो बाकायदा दस्ताना नहीं पहनेगी, जैसा कि दस्तूर है। अरबों के यहाँ के चेहरा भी ढका होता है, इनका दस्ताना नहीं होता। तो उनका दस्ताना नहीं होगा, उनका चेहरा खुला रहेगा, इल्ला है कि अजनबी सामने आ जाए तो उनको पर्दा करना जरूरी है। और मर्द हजरात के लिए सर खुला होना चाहिए, जिस्म के हिसाब से कपड़ा सिला हुआ ना हो, पायजामा ना हो, और इसी तरीके से टोपी ना हो, इमामा ना हो, और मोजा ना हो। अगर मोजा है तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की रवायत में टखने के नीचे से काट लेना होगा। ये वो कुछ कपड़े थे जिनका मुहरिम मर्दों के लिए इस्तेमाल जाएगी। बाकी औरत तो अपने तमाम कपड़े में, किसी भी कपड़े के अंदर वो एहराम में आ सकती है। सिर्फ उसको निकाब नहीं पहनना है, लेकिन अब मर्दों से पर्दा करने के लिए ऊपर से लेना है, और दस्ताना नहीं। और कपड़े के अंदर खास करके वर्ष और जाफरान की खुशबू नहीं होनी चाहिए, और किसी तरह की कोई खुशबू न मर्द के लिए जाए तो औरत की। अब वो रवायत जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था कि अगर मोजा ना पाए तो मोजे को काट ले, टखने के नीचे तक ले आए, ये जो हदीस है इसके मुकाबले में अपोजिट में ये हदीस आ रही है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, काल समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु बिअरफात मन लम यजिद नालैन फलयलबसिल खुफ़ैन व मन लम यजिद इज़ारन फलयलबसिस सरावील लिलमुहरिम। बुखारी मुस्लिम की रवायत है, मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरफात में खुतबा देते हुए सुना। आप फरमा रहे मल्लम यजिद नालैन, जो जूता ना पाए, जो नाल ना पाए, वो मोजा पहने। काटने का जिक्र आपने नहीं किया। वो हुक्म जो काटने वाला है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु की हदीस में जो अभी हमने पढ़ा, वो मदीने में आपने फरमाया। कुछ लोगों के दरमियान में आपने ये फरमाया। यहाँ जम्मे गफीर से अरफात के दिन आप खुतबा दे रहे, और अल्लाह ताला ने लोगों के कान खोल दिया। अरफात 1 लाख से जायद का मजमा है, ऊंची पर आप खिताब फरमा रहे हैं। कोई लाउड स्पीकर उस जमाने में नहीं था, तस्वुर कीजिए। और 1 लाख से जायद का मजमा कहाँ तक रहा होगा। और सहाबा कहते कि अल्लाह ने हमारे कान को खोल दिया, जो जहां था उसके कान में आवाज आ रही।
تو فرمایا کہ لوگوں سنو، جس کے پاس جوتا نہ ہو، نال نہ ہو، وہ موزہ پہنے، کاٹنے کا ذکر نہیں کیا. وَمَن لَّمْ يَجِدْ إِزَارًا، یہاں ایک بات کا اور اضافہ ہے جو وہاں عبداللہ بن عمر کی روایت میں نہیں تھا. جو ازار نہ پائے، لنگی نہ پائے، مجبوری ہے، پائجامہ ہے اس کے پاس یا پتلون ہے اس کے پاس، فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، تو وہ پائجامہ پہنے. یہ نہیں کہا کہ اس کو کاٹ کے پھاڑ لو اور شرمگاہ تک لا کر کے چھوڑ دو، بقیہ پائجامہ اس کا کھلا رہے گا، نہیں، یہ نہیں کہا آپ نے. اگر یہ ضروری ہوتا تو آپ یہ حکم فرماتے، کیونکہ لا يجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، ضرورت کے وقت سے تاخیر بیان میں کرنا جائز نہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس ازار نہ ہو، ازار نہ پاتا ہو، تو وہ سراویل پہنے، پائجامہ پہنے. لیکن اگر مان لیجیے کہ دو ٹکڑے ہیں کپڑے کے اور ان کو جوڑ کر کے چادر ہم بنا سکتے ہیں ازار، تو اس کو بیچ سے جوڑ دیجیے، وہ لنگی ہی کہلائے گی، ازار ہی کہلائے گا. تو اس طریقے سے کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو پائجامہ پہن سکتے، مجبوری ہے، اور کوئی فدیہ نہیں. یہاں آپ نے دو باتیں ذکر کی، وہاں صرف موزے کا ذکر کیا تھا، یہاں موزے کا بھی ذکر ہے کہ جس کے پاس نال نہ ہو وہ موزہ پہنے، ساکس پہنے، کاٹنے کا ذکر نہیں ہوا. اور جس کے پاس ازار نہ ہو وہ پائجامہ پہنے، اور اس کو بھی پھاڑنے کا ذکر نہیں کہ پائجامے کی سلائی کو پھاڑ دے، کم سے کم زانو تک لے آئے پھاڑ کر کے، ایسا نہیں کہا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حدیث مطلق ہے اور وہ مقید ہے لہذا لے آئیے، ارے مطلق مقید عام اور خاص کا یہاں جھگڑا نہیں ہے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے سامنے کہا تھا، یہاں جمع غفیر سے پورے حجاج کرام سے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت آ گئی کہ موزے کو کیوں برباد کرے، آدھی نیچے تک کاٹ کر کے اوپر کا پنڈلی کے آدھی پنڈلی تک جو چڑھتا ہے موزہ اس کو کاٹ کر کے بیکار کر دیا، جی پائجامہ کو پھاڑ کر کے بیکار کر دیا. تو اس سے یہ رخصت آ گئی بات میں، اللہ نے سامان کے ضیاع سے منع کر دیا. تو اس لیے صحیح یہ ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے. وہ مکے میں آپ نے فرمائی تھی موزے کے تعلق سے، مدینے میں فرمائی تھی، اور یہ آپ مکے میں عرفات میں کہہ لیں. تو اس لیے علماء حنابلہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر نہیں ہے تو موزہ پہنے گا اور اس کو کاٹے گا نہیں نیچے، جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ کاٹ کے لے کے نیچے تک آئے گا. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ موزہ کاٹنا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اوپر تک آرام سے لے جائیے. اور اگر لنگی نہیں ہے، ازار نہیں ہے، تو پھر پائجامہ تقدم میں آپ باندھ سکتے ہیں اور کوئی فدیہ نہیں ہے. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعین. وللکلام صلة، انشاءاللہ گفتگو آگے بھی جاری رہے گی. پہلا سوال ہے شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے شیخ. اگر ایک شخص جدہ جائے جاب کے لیے اور 1 یا 2 دن میں عمرہ کرنا چاہے تو کیا اس کو میقات جانا پڑے گا؟ اگر اس کی نیت یہیں سے تھی کہ وہ جا کر کے عمرہ بھی کرے گا تو اس کو احرام پہننا چاہیے اور عمرے کی نیت سے ہی جدے میں اترنا چاہیے، اور جا کر کے پہلے عمرہ کرے، اس کے بعد آ کر کے جدے میں جاب کرے اگر یہ نیت ہے تو. ابھی نیت اس کے عمرے کی نہیں ہے، کہیں اس کے دل میں خیال نہیں ہے عمرے کا، وہ صرف اپنے جاب میں جا رہا ہے، ریاض جا رہا ہے، جدہ جا رہا ہے، طائف جا رہا ہے، کہیں نہیں جا رہا. وہاں جانے کے بعد اس کا خیال کبھی بنے گا تب پھر وہ وہاں کی میقات کو فالو کرے گا. لیکن اگر ہندوستان میں سے جا رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ اپنے رشتہ دار سے ملاقات کرے گا، اس کے بعد ٹھہرے گا اور پھر وہاں سے عمرہ بھی کرے گا، تو چونکہ یہ نیت پہلے سے اس کے دل کے اندر موجود ہے لہذا اس کو احرام کی چادر میں ہی آنا ہے اور مکہ جا کر کے عمرہ کر کے اپنے جاب پہ آنا ہے یا ملاقات کے لیے آنا ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر جدہ سے اس کو میقات پر جانا پڑے گا، اور وہ جدے والوں کے لیے میقات نزدیک ہوگی، وہی قرن منازل جو سیل ہے وہاں جا کر کے احرام پہنے گا اور عمرے کی نیت سے مکہ آئے گا. دوسرا سوال ہے جی. شیخ، احرام باندھنے سے پہلے عطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے لگایا تھا کیا؟ جی جی، رات میں لگایا تھا، اور اس پر پھر آپ تمام بیویوں کے پاس گئے، ان سے مخالفت کیا، اور پھر صبح میں آپ نے غسل کیا، اور کہتی ہے کہ غسل کے بعد بھی اس قدر تیل کی طریقہ سے مالش کیا تھا، پورے جسم میں خوشبو اور سر میں لگایا تھا کہ اس کے باوجود بھی پسینے کی جو بوندیں آتی تھی تو وہ کچھ رنگین سی ہوتی تھی، یعنی اس میں خوشبو کا کوئی کچھ اثر رہتا تھا. تو غسل آپ نے کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی خوشبو باقی رہ گئی تھی. جزاک اللہ خیرن شیخ. آج کے سوال مکمل ہوئے شیخ. وباللہ التوفیق. لا إله إلا الله
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب